हाँ जी दे दो माइक पे लाइट अप, मैं बोलना बहुत कुछ तो खोल ली बोतल एंड आई स्वेयर टू गॉड दिस इज द लिक टॉप, मुझे नहीं करना फ्लेक्स पर ये बंदी ऐसी गुनगुना ही देती मेरे गाने सुन के मानो एक मेरे को गांजा नहीं फूकना और एंड दूसरा मेरे को म्यूजिक नहीं बनाना. द सॉन्ग इज लेस अबाउट कि वो कितनी अच्छी है एंड मोर अबाउट कि वो मेरे लिए कितनी अच्छी है. आना जाना लगा रहता है. इट्स लाइक शी एंटर्स द रूम एंड शी एग्जिट्स एंड कम्स बैक अगेन एंड इन माय लाइफ एज वेल एंड ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग. 7:30 ही लगी हुई है. माल फूक के मैंने दुनिया का सच सुन लिया. ठीक है भाई, तेरा दुनिया का सच ये कि तेरे को दोपहर में 2 बजे उठना है. पड़ोसी चूती हैं, दोपहर में कोई शोर करते हैं, रात में हमें शोर करने से रोकते हैं. दिल्ली की साउंड है. फकिंग रीड अ बुक यार. Is Arpit Bala single? Hey guys, I'm Arpit Bala And I am Karun. and you are watching us on Just Spotlight. तो अब सवाल ये आता है कि is Arpit Bala single? And what exactly is your type? I'm sadly I would have to say this. I am not. I am doing someone. No, I'm doing them good. No, hold up, pause. I'm with someone. It's gone. You cannot say it now. I'm with someone. And no, I'm not single. To be very honest, I don't like, that's not my type. I like to have that conversation with a woman who's like Galich Mufat, but like my type, like, like relationships and everything, that is something more than like, just riffing with a woman. Like तुम किसी बंदी के साथ में jokes मार रहे हो. Relationship is more than that, right? So that is, I think, like my type, like a person who is patient and accepts me and allows me to be patient with them. I have someone in my life, so I'm not available, that's for sure. But I'm not dating her, so it's very complicated. And I wrote that song for her only. So yeah, she's the Maharani. She's my Maharani, and I don't have her right now. So yeah, that's my life. Shit sucks, man. Yeah, it sucks. Shit It sucks. So how did music happen for both of you? College में, and I was trying to like make music and everything. I was trying to work with people. मैंने एक बंदे से मिला, उसका नाम था कुंज. This was the first time I saw someone making music from scratch. और मैं ये सब कुछ होते हुए देख रहा हूँ और मैं हूँ I am like faded, पूरा मतलब भंड, और मेरे को होने लग गई बीटी कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता भाई. ये तो लिरिक्स भी लिख रहा है, गाने भी बना रहा है, सब कर रहा है, मिक्स मास्टर भी कर रहा है, मेरे को तो कुछ नहीं आता. तो उस दिन ना मैंने 2 डिसीजन लिए. एक, मेरे को गांजा नहीं फूकना, और दूसरा, How is that going? I'm sober. I don't smoke up anymore. And दूसरा, मेरे को म्यूजिक नहीं बनाना क्योंकि वो मेरी औकात के बाहर का है. एंड उस टाइम मैंने ये प्रॉमिस किया था कि अगर म्यूजिक छोड़ रहा हूँ तो I'll pick up on comedy, और वो बहुत अच्छे तरीके से करूँगा. I don't know if वो अच्छे से हो रहा है नहीं, but I'm giving it all that I have. But yeah, फिर म्यूजिक मेरी जिंदगी में वापस कॉमेडिकली ही आया. वो I was like trying to parody the whole scene through Fusi Gang. और उसके through like I got into like a lot of studio sessions, and then I realized it's a process. It was a very immature move that I did. Don't believe the thoughts that you get when you're fucking high. Please don't, okay? जो लोग बोलते हैं ना कि भाई मैंने दुनिया का सच सुन लिया है ब्रो, माल फूक के मैंने दुनिया का सच सुन लिया है. ठीक है भाई, ठीक है. तेरा दुनिया का सच ये कि तेरे को दोपहर में 2 बजे उठना है. चल ठीक है, कम से कम मैं गाने बना लेता हूँ. I started very young. I was 11 or 12 when I started writing. So it was like, ऐसा कोई problem हो रही है तो मैंने लिख दिया जाके. It's been 5-6 years I've been making music and I've been writing from a very long time. So just those thoughts coming to life and then seeing 200-300-500 people singing those thoughts back to me, it's amazing. क्या कभी सोचा था कि जब ये गाना बना रहे थे कि ये इतना ज़्यादा वायरल हो जाएगा, हाँ जी एक सिनोनिम बन जाएगा कि उसके बाद कंप्लीट करना ही है दे दो माइक पे लाइट अप से, ऐसा कोई भी सोचा था क्या बनाते वक्त? नहीं, मैं तो नहीं सोचा था. नहीं मतलब अच्छा था, मुझे पता था कि अच्छा है. मतलब ऐसे नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था, ये तो सोचने वाली बात भी नहीं है. It's weird because now I am restricted to that idea of just doing हाँ जी कि मतलब if I have any shows तो it's like पूरा क्राउड ऐसे बैठा हुआ है और जैसी महारानी दूर ना जाना तू मुझसे दूर. हाँ जी दे दो माइक पे लाइट अप, मैं बोलना बहुत
मेरिट वाली जो चीज़ मुझे लगी एक बार, 2-3 बार मेरे साथ हुआ है पर्सनली। मैं अपने घर के पास गाड़ी पार्क कर रहा था, इट वाज 10 और 11 रात को, एंड दिस वाज 6-7 मंथ्स बैक। अभी ऐसा नहीं था कि वीडियो आ गई थी, और वीडियो से भी पुरानी बात है बहुत, 3-4-5 महीने। मैं गाड़ी से उतरा है, एक से बहुत तेज़ होंडा सिटी गई और उसमें गाना चल रहा था ऐसे दूर ना जाना। मैंने कहा वो मैं ऐसे खड़ा हूँ और मेरे घर के आसपास हो रहा है, तो वो अच्छा लग रहा है। कैन यू हेल्प अस डिकोड द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग? It starts off with, I would say कि कोई बंदे ने माइक पकड़ लिया नशे में और वो बस he's giving a tribute to a woman, I guess, that special someone. The song is less about कि वो कितनी अच्छी है and more about कि वो मेरे लिए कितनी अच्छी है. आप दोनों की बात करते हैं। हाउ डिड यू गाइस मीट? So I met him at a event. ये मेरे पीछे से आया, दिस इज वेरी फनी स्टोरी, शायद कहीं बताई नहीं है। ये मेरे पीछे से आया और इसने मेरे ऊपर ऐसे आंखों पे हाथ रख लिया पहचान कौन? और मैं मुड़ा और अर्पित खड़ा था। So हाँ, दिस वाज आवर फर्स्ट मीटिंग। तो इस एल्बम की पूरी कहानी अगर आपको एक जिस्ट के यूजर्स को समझानी हो तो वो क्या होगी? एक गाना है उसमें मर्जी करके, तो वो मेरी मर्जी थी, ऊपर वाले की मर्जी थी, या सर्कमस्टांसेस की मर्जी थी, मुझे नहीं पता। मेरे साथ ना ये होता है, मैं गलत जगह पे पहुंच जाता हूँ गलत टाइम पे, मेरे साथ ये बहुत होता है। और वो उस एक सही इंसान से रॉन्ग प्लेस रॉन्ग टाइम पे मिलना ना मेरे साथ हो गया था। While making this album, while going through something bad, I met another. It was a loop and I was like, this is happening again, I have to accept it. तो वो जब तो मैंने अभी ये बाद में बनाया है गाना ट्रेजेडी। I think it's like manifestation of all of this. So I was trying to accept, and now after 2-3 years, I finally accepted that that has happened. So it's basically the acceptance of life and the circumstances. That's 7.5 लगी हुई है। चल ही रही है, खत्म ही नहीं हो रही 7.5। ये आइडिया कैसे आया कि एक ऐसा गाना, 6 मिनट का गाना है, तो ये आइडिया कैसे आया कि एक ऐसा गाना बनाना है? Basically I was making the album and मेरे पास ऐसा कुछ 10-12 ट्रैक्स थे and this was one of it. So I made the intro, the hook and everything with him. And then उसके बाद जब मैंने hook और वो सब बना लिया, I went up to him and I was like, I have this, so what do you want to do on this? मैं बहुत ही घटिया डेमो दिया था। पहला वाला was just ass, pure ass। मस्त था वो। बट हाँ, उसके बाद मैंने एक और गाना बना रखा था, वहाँ से मैंने आधा वो उठाया और उसमें डाल दिया था। तो that's how I created महारानी। Even मेरा singing वाला part और इसका part हो गया, then I went to Revo and then he had no clue कि क्या चल रहा है। मैंने उसको उसी टाइम सुनाया, मैंने कहा अब सुन और अब लिख दे। फिर उसने लिखा और मैंने भी लिखा मेरा वर्स, जो मेरा लास्ट का रैप है वो तब लिखा, एंड देन आई कंप्लीटेड, एंड देन थोड़ा सा अरेंजमेंट हुआ। फैजान इज अ गाय हु प्लेड गिटार्स फॉर लाइक 10 मिनट्स। हाँ, ऐसा पूरा भर दिया था 10 मिनट का होने। एंड फिर उद्भव भैया आए, उन्होंने बोला कि रुको भाई, अच्छी जगह से उठाते हैं, अच्छी जगह पे काटते हैं। प्लेस करा, देन इट हैपेंड एंड या दैट्स हाउ इट इज। लिरिक्स लिखते वक्त क्या चल रहा था दिमाग में? मैंने जब ये लिखना शुरू किया था तो आई हैव अ पर्सन इन माय लाइफ जिसके लिए मैंने लिखा है गाना। तो व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट हर क्रॉसिंग द रोड, लाइक बीइंग इन द रूम, इन द कॉरिडोर एंड एवरीवेयर, इट्स लाइक ओनिंग द प्लेस इज वेरी स्मॉल। सो मुझे ऐसा लगा कि वाओ। तो जब ऐसा वाओ निकला, सो आई रोट दैट हुक, और फिर वो आना जाना लगा रहता है। इज लाइक शी एंटर्स द रूम एंड शी एग्जिट्स देन कम्स बैक अगेन, एंड इन माय लाइफ एज वेल, एंड ऑल ऑफ दैट वाज हैपनिंग। काफी रिलेटेबल हो गया। So I wrote that and then मैं इसके पास गया, फिर इसने एक अपना वर्जन दिया which was amazing. I mean, I was just trying to be quirky with I was just trying to be creative. मतलब मेरे दिमाग में सच कोई एक पर्सन नहीं था, but yeah, of course, you pick up on habits and you meet people and then you think कि हाँ ये habit मुझे उसकी अच्छी लगी and everything. तो वो सारे मिला मिलू के I just लेके होता ना, जैसे एक मिट्टी से अपनी एक औरत बनाई मैंने। Okay, तो what do you think कि इस गाने को इतना फेमस किस चीज़ ने बनाया है? because this is very apart from the album, that's why I guess, and the music is very different. It's upbeat. Other album is going somewhere else. This is like शुरू का प्यार होता है ना, ये वो है, वो हनीमून फेज है ये। तो हनीमून फेज तो सबको अच्छा ही लगता है, तो शायद सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट उसी में रहती। तो आई थिंक दिस इज दैट हनीमून फेज ऑफ द एल्बम। मैंने वीडियो भी देखा एंड फ्रॉम अ फर्स्ट गेट गो ना, मुझे बहुत ऐसे देव डी के इमोशन अत्याचार टाइप्स वाइब आई देख के। वीडियो के प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसा था? हमने शुरू में कुछ और कॉन्सेप्ट सोचा था,
वो बहुत ही क्रेजी ऐसा डबल स्पाई ट्रिपल स्पाई वाला कॉन्सेप्ट था. वो उसके अंदर हम लोग बहुत मतलब इट वाज लाइक गोइंग हेवायर एंड आई जस्ट नो कि considering the resources we have and considering the fact that this is an indie project, Yeah. कोई लेबल का बैकिंग नहीं है anything, we were like you know हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे साथ में हाँ बैठ के सब. औकात से बाहर का बहुत ज़्यादा सोच रहे थे. फिर मैंने ही आइडिया दिया था इनको कि let's just you know use देवडी as a reference. और फिर वो just hit off. हाँ और उसके बाद हो ही गया. मैं एक वीडियो देख रही थी वही वो जहाँ पे there's अर्पित बाला and there's a car like every standard meme video out there but there you said मैंने महारानी इसलिए नहीं गाया था क्योंकि मेरे को पैसे कमाने थे. मैंने महारानी इसलिए गाया था क्योंकि मैं ये बताना चाहता था कि म्यूजिक इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स इतने गिरे हुए हैं कि मैं भी एक सिंगर बन सकता हूँ. उस मोमेंट पे वो चीज़ बोलना मेरे को बहुत फनी लग रहा था. And I'm now facing the fucking consequences of it. वो थर्ड इंटरव्यू दिस इज हैपनिंग. थर्ड इंटरव्यू की हमें बात कर रहे To be very honest, जब मैं ऐसी चीज़ें बोलता हूँ कि लाइक यू नो मैंने महारानी इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मेरे को कमर्शियल पैसे कमाने थे. इट वाज मोर लाइक स्टेटमेंट कि ऐसे गाने बना के भी आप इंडस्ट्री को बता सकते हो कि क्या ही स्टैंडर्ड्स रह गए. आई एम ऑलवेज लाइक यू नो फॉर जोक्स ऑन मी एंड एवरीथिंग इन द मोमेंट एंड एवरीथिंग, बट डू आई लाइक रियली believe that? I don't think so. I'm trying to like you know experiment with music. I'm trying to like break conventions, and some people are going to like it, some people are not going to like it. And कहीं ना कहीं if like इतनी ज़्यादा अजीब चीज़ if it's breaking the mold, it also questions the mold itself. what's the struggle of an independent artist in India right now? अरे क्या ही स्ट्रगल है यार. स्ट्रगल भी नहीं बोलूंगा. सारे डॉज कैसे समझाऊं लोग क्रैक मैं? कर लेते हैं. सारे सैंपल्स लोग पायरेट कर लेते हैं. Everything is like cracked. Yeah, it's just Reddit there. पे जाके हर चीज like हमारा पूरा indie scene is just piracy. It's just blatant piracy, IP theft. It's just that. कोई किसी का कुछ नहीं है ब्रो. मतलब I wouldn't say like अच्छे से अच्छा स्टूडियो उस पे लिखा हुआ है FL 19. Hold up man. ये अपडेट क्यों नहीं है? अर्पित एक्सपोजिंग इंडी म्यूजिक. नहीं भाई माँ कसम. आई थिंक सबसे बड़ा जो स्ट्रगल है ना इंडी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए वो है पड़ोसी. दैट्स ऑल. दैट्स पड़ोसी. या पड़ोसी. क्योंकि हमें कोई सीरियसली नहीं लेता. हाँ बंद करो ये भै 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 बजता रहता है. फ्लैट्स में रहते हैं ये म्यूजिशियंस और इनका बस एक ही होता है स्ट्रगल, पड़ोसी. भाई ये पड़ोसी चूती हैं. दोपहर में खुद शोर करते हैं, रात में हमें शोर करने से रोकते हैं. any incidents that you Yeah. guys have had? लॉट बहुत. कोई मतलब कोई ऐसे इंटरेस्टिंग भाई क्या कर रहे हैं? मैं बता तो रहा हूँ like you know the distinct sound of North India is missing from all of our tracks. जितने भी हमारे इंडी सीन के ट्रैक्स हैं. पता है क्यों? क्योंकि हम गाने रात में बनाते हैं और वो डिस्टिंक्ट साउंड पता हूँ क्या है? वो जो टाइलें घिसती हैं वो है दिल्ली की साउंड. कहीं पे माँ कंस्ट्रक्शन कसम कह रहा हूँ ना, जो मुंबई में बोलते हैं कि अपन लोग ये वो मुंबई का अगर स्लैंग है वो साउंड है. दिल्ली की साउंड है टाइलें घिस रही है. टक 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 टक. ये है दिल्ली की साउंड. शिट यार कैसे कर सकता है कोई? आप हेडफोन्स उतारो ईयर फटीग, हेडफोन्स पहनो तो गाना सुन के ईयर फटीग. मिक्स कर नहीं सकता कोई आदमी. ये है स्ट्रगल टू बी वेरी ऑनेस्ट. What has been the reaction from women to the song? And कुछ ऐसे मतलब क्या कमेंट्स आ रहे हैं? कोई मैसेजेस आप लोगों को आए हैं या They love it. Yeah. They just love it. Yeah, women. Even my mother loves it. Yeah. See, I'll be honest, like Maharani is one song that women like because kahin na kahin it's like you're celebrating Yeah. her being a good woman to you. ठीक है? You're celebrating that fact. क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट देना किसी औरत को बहुत कम होता है फॉर मैन. लाइक यू नो यू नीड टू बी लाइक यू नो बहुत ज़्यादा नशे में. Hey, you know, I really like what you did. वो नहीं होता. For me. वो नहीं करता कोई. Because you're just like, nah, I can't do that. I can't do that. For that, I would say this song was very nice. That song was very nice because of this. कोई कमेंट्स आए हैं, कुछ रिएक्शन आए that you would like to share? To be very honest, I've seen this trend like as soon as like a lot of women started hearing it, there was this whole batch of like my fandom, like my audience, which is like a majority male. They're just like, आ गई यहाँ पे बेकार. They just get threatened by you know like female presence. Just get threatened. Like अगर कोई मेरे मतलब गलीज गाने भी अगर कोई औरत सुन रही है ना, ये तो wannabe है. क्यों? तूने क्या उखाड़ लिया? बस तूने भी तो बस वही किया है, प्रेस प्ले. अगर कोई लड़की प्रेस प्ले कर रही है, हाउ डज दैट मेक अ डिफरेंस? आई जस्ट डोंट गेट इट. एंड मैं यहाँ पे किसी औरत वाली मतलब उसको केटर करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ. आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक यू नो व्हाई डू यू नीड टू लाइक
गेट कीप शिट फ्रॉम विमेन. इट्स लाइक वो मेंटालिटी नहीं थी स्कूल में लड़की प्राइमरी विंग में होता था. ये बॉयज क्लब है ब्रो, बॉयज रूम है ये. तो फक मैन, नर्सरी के बच्चे करते थे ऐसी हरकतें. आई थिंक लोगों को ना बहाना मिल जाता है ये करने का. हाँ उनको ना, मैं सही बताऊँ ना, इसमें कुछ गाने का नहीं है, कुछ नहीं है. उनको औरतों को गाली देने का मौका चाहिए बस. ये है सिंपल रीजन. मैं तभी बोलता हूँ आपको गाली देनी है सीधा दो, मेरे को क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो. सीधा गाली बक दो ना. Why are you using me? मेरे कंधे पे बंदूक रख के लोगों को लग रहा है मैं बढ़ावा दे रहा हूँ. नहीं, आपको लड़कियों को गाली देनी है भाई, मेरे को नहीं देनी. What led you to content creation and I mean parents का क्या reaction था? And how has it changed अभी? Content creation was just the fact that I had always been like not good at studies, and finally something like worth focusing on came to my plate. And I really like that process of like sitting 5 hours a day just to be silly and not take myself seriously. I really like that. But yeah, parents का तो वही होता है, like concerned overachiever parents like from AIMS and everything. So they will be like concerned, right? Like because they worked their asses off and now they have this. What is this? है ना, तो लाइक दे वर weirded out at initially. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला जो इकोनॉमिक्स में होता है वो सब मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि आप मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, ये जो मैं ये छोड़ के ये कर रहा हूँ. इफ आई एम एबल टू रिकवर दैट और मेक समथिंग क्लोज टू दैट इन अ ईयर, वुड दैट मेक यू हैप्पी. एट द एंड ऑफ द डे बात उसी पे ही आ गई. तो फिर अब क्या बोले हम, तो दे वर लाइक हाँ करके दिखाओ, हो गया. मेरे को लगता है कभी कभी ना मेरे मम्मी पापा ऐसे जाते होंगे, बोलते शिट डांट नहीं सकते यार अब इसको. आपको क्या लगता है कि इंडिया में कंटेंट क्रिएशन और टैलेंट का जो मैट्रिक्स है वो कैसा हो गया है अभी? लाइक टैलेंट की ज़रूरत होना टू बी लाइक गुड इन कंटेंट क्रिएशन एंड एवरीथिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड. आप जाके देख लो, आप इंटरनेट खोल लोगे, सबसे ज़्यादा जो वीडियोस पे जो व्यूज़ आते हैं दे आर द मोस्ट वियर्डेस्ट शिट दैट यू हैव सीन. दैट इज़ कोई बंदा चल रहा था, उसने नंगी पैर पे हाथ लगा दिया. That video was not even meant to be made. Yeah, It was not but even वो a video. बस वो बन गई कि किसी ने नंगी तार पे हाथ रख लिया है. That shit is now popping off. कोई बंदा ट्रेन के ऊपर चढ़ गया, उसको करंट लग गया. वाओ भाई, मुझे तो ये लगता है कि अगर तुम्हारे को इंस्टाग्राम खोलना पड़ रहा है, यूट्यूब खोलना पड़ रहा है ऐसे देखने के लिए, फिर गाने सुनने पड़ रहे हैं कि नहीं भाई मेरे को ना कुछ सीखना है आज. Fucking read a book यार. पूरी की पूरी लिटरेचर बढ़ी हुई है भाई, इतने सारे राइटर आए, इतनी सारी रिपोर्ट्स आती हैं, इतने सारे आर्टिकल हर रोज छपते हैं. बट यू वांट कि कोई तुझे वो स्पून फीड कराए एक गाने में है, यू पोस्ट में है, इंस्टाग्राम पे. इट इज नॉट अबाउट कि लाइक कि टैलेंट कितना एंड एवरीथिंग. इट्स जस्ट दैट पीपल आर कंज्यूमिंग सो मच दैट दे फील जो बंदा मेरे को इतना सब कुछ दे रहा है ना, ही शुड ऑल्सो लाइक टीच मी समथिंग, बिकॉज आई फील बैड कि मैं जो इतना ज़्यादा मैं डूम स्क्रोलिंग कर रहा हूँ और मेरा इतना ज़्यादा टाइम खराब हो रहा है. तो वो एक्सपेक्टेशन ना वहाँ से आती है. लाइक पीपल गेट इनसिक्योर कि लाइक ये होता होगा 17, 18, 19. द मोस्ट पॉलिटिकली एक्टिव पीपल आर व्हेन दे आर 17, 18, 19 बिकॉज देयर लाइक इतना खाली टाइम है. क्या करें हम मैं मस्ती मारूं. मैं मस्ती मार रहा हूँ. नहीं यार, why am I doing this? मेरे को पॉलिटिक्स के बारे में जानना है, because they think पॉलिटिक्स के बारे में जानना makes them smarter, which is not the case. What makes a person smarter then? I know for a fact just because you know who's corrupt does not make you smarter. ठीक है, that's just like general knowledge होना ठीक है, but that does not make you smart. What are some artists that inspire you and why? Like both of you. I would say right now, currently, for the past 2-3 years, I've been inspired by Kanye West a lot. I've been listening to him a lot. So his music, not his actions per se, but his music has been inspiring me. I don't know, his actions are कुछ के लिए कुछ. मैं तो उसको ना as a phenomena देखता हूँ कि वो क्या कर रहा है. अभी Kanye क्या करेगा. मतलब I look at him like that. Yeah, because it's just funny. Like, Yeah, do it. Like, क्लास में एक लड़का होता है, which you enable. तेरे को पता है मैम ने क्या बोला? Lies. ठीक है. Just to see his reactions. That's how we perceive. Like I look at like Kanye. Okay, yes. Come on, Kanye. Yes, do a campaign. Yes, I want to see you as a president. Yes. Kanye, हनी भैया for sure. हम बचपन से सुन रहे हैं उनको, तो उनकी तरह
कुछ ज़रा सा भी मैं बना दूंगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा जिस दिन। यार मैं फिर वही बोलूँगा, नहीं मतलब बढ़िया था, बहुत अच्छा था, मतलब रिटर्न कहाँ है यार, मतलब या आई थिंक इस बार ग्रैमी पक्का आ जाएगा। वन मोर आर्टिस्ट आई वुड लाइक टू से फ्रॉम इंडिया, आई थिंक हमारे आसपास में ही हमारा एक दोस्त है धनजी गिल। Yeah. मुझे धनजी के लिए ऐसा लगता है हर बार कि दैट गाय, दैट द रैप थिंग ही हैज़ इन हिम, द काइंड ऑफ रैपर ही इज, आई हैव नॉट हर्ड समवन लाइक दैट इन इंडिया। I would say people that inspire me are the ones that are very clear with their goals, like you know, and are very particular. जैसे धनजी हो गया, like with Ruab, I think he was the utmost particular, like to the detail. He wanted things to be He perfect. took his time. Yeah, and the same goes with Char Diwari. And this is the problem also with Char Diwari, that he's so damn particular about it that he can't see the other person's vision. Yeah. And kahin na kahin, I really respect that vision. Ki like, you know, you're so damn controlling with your artistic endeavors that you don't see it any other way. Same goes with Paradox. Same goes with like other people and that I've worked with, Siddharth Pappa. So yeah, I really like people with that mindset that are so clear with respect to their song. Anji दे दो mic पे light up, मैं बोलना बहुत कुछ तो खोल ली बोतल and I swear to God this and that liquor talk, मुझे नहीं करना flex पर ये बंदी है। गुनगुना ही देती मेरे गाने सुन के मानो रट के बैठी मेरे वक्त से सारे बंदी बॉय कट रैपर इस पे लाइन लड़कों की पर गाती गाने सिर्फ मेरे वाले। भाई सच में बोलूं तो ये बंदी सेट है ना, ये भूखे माल और ना ये कत्ती डैट है। मेरा दिल भी देख के पूछे कौन है भाई, मैं कहता भाई टू भाई ये तेरे भाई की सेटिंग है।